Good afternoon everyone. Welcome to Mastermind Public Higher Secondary School Hathwas Piparia. Okay. My name is Tanvi Srivastav and I am your new maths teacher. So first of all, I'll teach you maths like a second chapter, that is large numbers. First chapter we'll do later on because it is of the revision part. Okay. So we'll do second chapter first. Okay. Okay, so have you studied in like earlier classes, have you studied about the number system like from 0 to 9, okay, and like 10, 11, 12 and up to infinity there are numbers, fine. So if we say about like a 3-digit number, अगर हम किसी 3-digit number या 4-digit number की बात करते हैं तो कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे 3, 8, 6 ले लिया, ये क्या हो गया 1, 2, 3, it will become a 3-digit number. कुछ और डिजिट्स ऐड कर दी 2, 4, 5, सो इट विल बिकम अ 6-digit नंबर. ओके, बट इफ आई टॉक अबाउट लाइक you have to write the smallest 5-digit number or you have to write the largest 7-digit number or 5-digit number. Okay, so what you will do, 1 is the smallest number. Okay, after that 4 zeros, then it will become the 1, 2, 3, 4 and 5, and then it will become the smallest 5-digit number. It will be a smallest 5-digit number. Okay, 1 after that 4 zeros. और अगर हम जैसे 7 zeros जैसे इसमें लिखा है the smallest 7-digit number. ओके, तो अगर हम इसमें 1 then after that 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लगा दें, लेकिन नंबर्स तो वही रहेंगे, डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स हैं, तो इट विल बिकम अ 7-digit नंबर. बट 1 आफ्टर देन 0 आर देयर, तो देन इट विल बिकम द स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर. ओके, smallest 7-digit number. Fine. Now if I talk about the largest 5-digit plus 7-digit, or you can write 3-digit, 4-digit, okay, and so on. So 5-digit number या 7-digit number लिखेंगे तो 1 after largest लिखना है, ठीक है. तो largest में 9 greater number. ओके, तो 9 को 5 बार लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, तो ये क्या बन गया, लार्जेस्ट 5-digit नंबर. ओके, और सेम इसके साथ भी यही 9 को 7 टाइम्स लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट 7-digit नंबर. Okay, fine. So after that you can see in the book, here it is written Indian place value chart. We have 2 place values like Indian as well as international. On page number 10 you can see this chart, and on page number 11 you can see the international place value chart. Here you can see, okay, this one, the blue box. Okay. So our next topic is place value. So in the place value chart, here it is, we have to start from the left to right, from the right to the left. Okay, यहाँ से यहाँ लेके जाना है. Okay, like from ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs and so on.
यहाँ करोड़्स तक दी हैं। ओके, तो जैसे अब कोई भी डिजिट हम ले लेंगे, जैसे ये बुक में ही दी है, ये डिजिट हम ले लेते हैं 3751426। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बुक की डिजिट्स हों, और भी कोई भी डिजिट्स हों, वो सारे आपको इसी तरीके से लिखनी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू के उससे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, ये एक चार्ट है। ओके, ये एक डिजिट की क्या प्लेस है वो रिप्रेजेंट करता है। फाइन, एंड 1s, 10s, 100, ये जो है ये आता है 1s पीरियड के अंदर। फाइन, एंड ये 1000 के अंदर आता है, 1000 पीरियड के अंदर, और ये लैक्स, और इसके बाद अगर आप लिखना चाहें करोड़, 10 करोड़, तो ये जो आएगा, कोई भी नंबर आप दे दीजिए 2, 1, ये जो आएगा आपका करोड़्स के पीरियड में। ओके, ये एक पीरियड रहते हैं जिसके अंदर आपका जैसे लैक्स पीरियड के अंदर lakh एंड 10 lakh आएगा। फाइन, सो ओके। और अगर आप इसमें ध्यान रखें कि आपको कॉमा कहाँ लगाना है, तो इसमें आपको पहले जो पीरियड रहेगा, जैसे 1s का पीरियड है तो इसमें 1s, 10s, 1000, 100 आ रहे हैं, तो यहाँ कॉमा लगेगा, यानी इस डिजिट के बाद। ओके, उसके बाद 1000 का पीरियड एक सेपरेट कर दीजिएगा, तो यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा। लैक्स का ये, ओके, तो सेपरेसी हो गई। और इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, लाइक इन वर्ड्स। ये तो एक सिर्फ नॉर्मल फिगर्स में है। ओके, अगर हमें वर्ड्स में रीड आउट करना है तो कैसे करेंगे? इट इज़ 12 करोड़ 37,51,426। ओके, ओके, सो ये आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्लियर हो गया होगा। देन यू कैन सी इन दिस बुक, here it is written international place value chart. Okay, so there is 1s period, 1000s period and millions period. Fine, so in the 1s period here it is 1s, 10s, 100, and the 1000 period here it is 1000, 10,000, 100,000, और millions में millions, 10 millions and 100 millions. Okay, so this will you have to learn, ये चार्ट और ये चार्ट you have to remember it. Okay, okay, so अब अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें तो उसमें मैंने आपको कॉमा लगाना बता ही दिया है, लाइक 3, 7, 5, 1, 4, 2, 6, 3, 1. ओके, एनीथिंग वी कैन राइट। इसमें पहले 1s, 10s, 100 यहाँ कॉमा लगेगा, देन 1000, 10,000 यहाँ लगेगा, देन लैक्स, 10 lakhs यहाँ, और फिर करोड़, 10 करोड़। ये हो गया अपना इंडियन। फाइन, और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें किस तरीके से लिखेगा, जैसे ये डिजिट्स को मैं उसमें लिख रही हूँ इंटरनेशनल में। इसमें क्या आएगा, 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100 यहाँ कॉमा, देन 10,000, 10,000 एंड 100,000 यहाँ कॉमा, देन millions, 10 millions एंड 100 millions. ओके, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे। लाइक इसमें 3 देन 2, 2 के गैप रहेंगे, इसमें 3, 3, 3 का गैप रहेगा। ओके, ऐसे आप याद कर लो। लेकिन सपोज कि अगर आपने जो ये कॉमाज हैं, एक मिनट, जैसे कोई भी ये डिजिट है, लेकिन अगर आपने कॉमाज ऐसे 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 इस तरीके से लगा दिए तो इसका मतलब ये एक सिंपल एक डिजिट है, एक, ठीक है। जैसे
जैसे 1 एक अलग डिजिट है, 3 एक अलग डिजिट है, 6 अलग डिजिट है, ये सब सेपरेट हो गई है। तो इसलिए कभी ऐसा कॉमास मत लगाना, कॉमास के लिए बहुत ध्यान से ही लिखना है ये चीज़ देख के, ठीक है। ये आप रीड आउट कर लेना थोड़ा, ओके। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक? एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर। ओके, सो इसमें जैसे ये वैल्यू दी है, ये क्या दी है? फिगर्स में दी है, ओके। 963, ओके, ठीक है। ये हमें फिगर्स में दिया, अब हमें इनको वर्ड्स में यानी एक्सपेंड करना है, किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना, उसको एक्सपेंड करना, ओके। तो उस फॉर्म में लिखना है। ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, फाइन। और अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे आप देखो, सिंपली बस इतना करो कि 7 है, उसके बाद कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 नंबर्स हैं, 8 डिजिट्स हैं, तो 8 जीरोज लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंड आप कॉमास लगाने का बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे हर एक वैल्यू को, जैसे 7 को अलग से लिखेंगे, 2 को अलग से, 6 को अलग से, 4 को अलग से, इन सबको एडिशन में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 70 करोड़, देन 2 करोड़, क्यों? क्योंकि 7 डिजिट्स है इसके पीछे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। देन आफ्टर दैट कॉमास आप लगा लेना, ठीक है। मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। और उसके बाद 6, यहाँ 2 आया, देन आफ्टर 6, अब 6 के बाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ 8 डिजिट्स, यहाँ 7, यहाँ 6, ऐसे ही करते करते कम होती जाएंगी। मैं पूरी लिख ही दे रही हूँ, ओके। देन प्लस 4, 1 2 3 4 5 डिजिट्स, then plus 5, there are 4 digits, 1 2 3 4, okay. Then plus 8, there are 3 digits, then 9 1 2, then okay. लास्ट का नंबर जो रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो वंस की प्लेस में है। 6 बस सेम जो प्लेस वैल्यू चार्ट पड़ा था बस वैसे ही है, वंस की प्लेस में है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखना है। 10 तो 1 इंटू में 10, ठीक है। एक 0 लगा दिया, फिर ये 100 की प्लेस पे है तो ये 900 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे करने हैं, ओके। तो लाइक मैं कोई स्मॉल डिजिट का भी एग्जांपल अगर लूँ तो बता देती हूँ। लाइक जैसे 673, ये हो गया स्मॉल, लाइक 3 डिजिट नंबर हो गया, फाइन। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे? 6 के आगे 2 0 प्लस 7 के आगे, क्योंकि 6 क्या है? 100 की प्लेस पे है तो 100, 7 क्या है? 10 की प्लेस पे है तो 1 0, और 3 जो है वो अपना एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो 1s की प्लेस में है, फाइन। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। Exercise will I teach in the next video, okay. First of all I'll complete this chapter, I'll explain it firstly, then after that I'll do exercise. अब comparison of numbers, तो अब हमें किसी नंबर की कंपैरिजन करना, लाइक उसकी तुलना करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे अब आपको नॉर्मली पता है, अगर मैं लिखती हूँ 6 या और लिखती हूँ 5, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 7 जो है वो बड़ा है, तो हम एक साइन का यूज़ करते हैं, दिस, ओके। ये हो गया ग्रेटर वाला साइन, जिसकी तरफ माउथ ओपन रहेगा लाइक दिस, तो ये वाला बड़ा रहेगा, ओके। और जिसकी तरफ ऐसा माउथ बंद रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब हमको लाइक बहुत सारी डिजिट्स हो
और फिर हमको कंपैरिजन करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? ओके, सो रीड इन दिस बुक, अ नंबर विथ मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। तो ये तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर 2, 6, 7, 8 है और इस साइड हमने ले लिया, यहाँ मैं बॉक्स बना दे रही, इस साइड हमने ले लिया 5, 2, 1, 3, 4, मैं बस रेंडमली नंबर ले रही हूँ, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही हूँ। तो ये जो है ये कितनी डिजिट है, सबसे पहले डिजिट गिन लेना, 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर है, और ये कितनी डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है। तो ऑब्वियसली 5 डिजिट वाला नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है, तो हम इसकी तरफ माउथ ओपन कर देंगे, फाइन। ये बॉक्स अगर आप कंफ्यूजन ना हो तो इसकी तरफ माउथ ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ ये भी 5 डिजिट हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, अगर नंबर सेम रहे तो आप तो इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे, राइट। बट अगर 5 डिजिट नंबर दोनों हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो उसमें हम कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम इधर से देखेंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ, कि अब सबसे पहले 2 है, यहाँ क्या है 5, तो ऑब्वियसली जो 5 है वो बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती कि यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, ठीक है, समझना ये बात, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अब इनमें से कौन सा बड़ा है? तो अब हम इसकी नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, यहाँ कौन सा नंबर है 6 और यहाँ क्या है 2, तो बड़ा कौन सा हुआ 6, ठीक है। तो 26 बड़ा है कि 22 बड़ा है? ऑफ कोर्स 26 बड़ा है। तो हम जो ये नंबर है ना, इसमें यहाँ इसका साइन लगा के इसका माउथ ओपन कर देंगे, यानी कि दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट, ओके। ओके, so now if we talk about ascending and descending orders of number, fine, let's see an example। ये कंपैरिजन था, ठीक है, आप मुझे लगता है कि आप शायद समझ गए होंगे। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर के बारे में बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैं 3 डिजिट नंबर 3, 4 ले लेती हूँ 3 डिजिट के, ठीक है, जैसे 729, 786, 740 और ये 7 नहीं, मतलब कुछ भी आप ले लीजिए, 840, 586 या फिर 329, फाइन, और ऐसे सो ऑन, फाइन। तो अब ये 4 हैं, ये अलग अलग हैं, ओके, ये 4 हैं, 4 डिजिट्स हैं सेपरेटली, तो इनको अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, ठीक है, और डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम इन सब की फर्स्ट वैल्यू देखेंगे, जो कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। फर्स्ट वैल्यू क्या है? इसकी 7 है, 5 है, 8 है, 3 है। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 329, क्योंकि और कोई 3 है नहीं, ठीक है, सेम वाला नंबर कोई है नहीं। देन आफ्टर दैट 586, देन आफ्टर दैट 729 एंड 840, ओके। क्यों? क्योंकि 3 सबसे छोटा, फिर 5, उसके बाद 7 बड़ा, देन 8 उससे ज़्यादा बड़ा। तो ये हम इसको इस पैटर्न में अरेंज करते हैं। मैंने बोला था ना कि जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ माउथ इसका साइन का ओपन रहेगा, ऐसे ऐसे मुंह खुला रहता है ना, वैस टाइप से ये, ओके। सो ये जो साइन है ये लगाना है। तो ये क्या हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि कोई पैटर्न, कोई सीरीज़, कोई क्रमांक में हम किसी को जमा रहे हैं, ओके। सो आफ्टर दैट अगर मैं ये कहूँ, बट प्रॉब्लम ये जाएगी कि अगर मैं ये बोलूँ कि सारे नंबर जैसे सेम हो, जैसे मैं पहले लिख रही थी 777 777, ओके। अब यहाँ सारे नंबर ही सेम हैं, तब क्या करेंगे? तो हम फर्स्ट नंबर को नहीं देखेंगे, वील स्किप दैट फर्स्ट नंबर, वील गो ऑन टू द नेक्स्ट नंबर। हम
दूसरे नंबर को देखेंगे आप। 7 के बाद यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ है 8, यहाँ 4, यहाँ 2। अब दो जगह 2 है क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 है, फाइन, और 2 जगह 2 है, तो ये दोनों सेम हो गए, 729। ओके सॉरी, नंबर भी सेम है, आई एम सॉरी। हाँ, अगर नंबर सेम हो तो दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 8 लिख दिया, ओके। तो अब अगर जैसे 2 है, ये भी 2 है, तो इसके बाद वाला देखेंगे अब, क्योंकि 8 और 4 तो 2 से बड़े हैं, तो पहले इन्हीं को देखना पड़ेगा। तो 2 के बाद वाला 9 है और इधर क्या है, 8। तो 9 बड़ा है कि 9 छोटा है कि 8 छोटा है? ऑफकोर्स 8 छोटा है, तो सबसे छोटा ये हो गया 7, 8। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 728, ठीक है। उसके बाद ये वाला आएगा क्योंकि 2 है ना इसमें, 729। उसके बाद क्या आएगा, अब 7 7 तो सेम है, अब 8 और 4 में से कौन सा सबसे छोटा है, 4 है, तो यहाँ आएगा 740, देन आफ्टर दैट 786, फाइन। ओके, सो दिस विल बी आर असेंडिंग ऑर्डर, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको आप उल्टे क्रमांक में जमा लीजिएगा, जैसे कि वाइस वर्सा कर लीजिए, 786, ओके, देन 740, देन 729 एंड देन 728। ये क्या हो गया, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइन, ये हो गया अपना डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। Okay, so our next topic is on page number 15, successor and predecessor of a number. First of all, successor क्या होता है? The successor of any number is one more than that, और predecessor of any number is one number less than that, यानी कि कोई भी नंबर बस उससे एक बड़ा तो वो होगा सक्सेसर, और एक छोटा यानी कि वो होगा प्रेडिसर, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब कि कोई भी आप डिजिट लिख लीजिए, जैसे यही वाली डिजिट ले लेते हैं हम 715 937201, ओके, 937201, ओके। सो इसमें बस 1 ऐड करेंगे, इफ वी ऐड 1 देन इट विल बिकम अ सक्सेसर, ओके। सो ये सक्सेसर हो जाएगा, फाइन। और अगर इसमें ही इसी नंबर में 715937201 में हम 1 माइनस कर देंगे, ओके, सो 0, so it will become a predecessor, okay. फाइन। 1 ऐड करना किसी भी नंबर में तो उसको सक्सेसर कहते हैं, और 1 माइनस करना किसी भी नंबर में तो उसको प्रेडिसर बोलते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। I think that's the most important topic. अब जैसे कि आपने वो इंडियन आपके प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने देखा है कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 up to so on in this you can, if you can see, चलिए मैं लिख ही देती हूँ, और यही नंबर ले लेते हैं बुक का ही, 243597816। और बेटा स्क्रीन
सो ये नंबर है पूरा, इसकी प्लेस क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore according to the Indian place value chart. Okay, we are not talking about the international. Okay, so अब हम अगर बोलें कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6, okay students, sorry for the slight issue. Okay, so we are talking about the place value and face value of a number. so अब अगर हम 6 की बात करें तो 6 कौन सी प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है, ठीक है। तो 6 इंटू वंस यानी कि 6 इंटू 1, ओके, सो इट विल बिकम 6। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। बट अगर जैसे रेंडमली इसकी बात करें, ओके, 5 की, तो 5 की क्या प्लेस वैल्यू है, लैख, ओके। तो 5 इंटू लैक्स, सो इट विल लाइक लैख में 5 zeros, ओके, 1 2 3 4 5, so it will become, so the place value of 5 is this 5 lakh, okay। 3 की बात करें तो इट लाइक वेट मिनट, या 3 की बात करें तो 3 जो है 10 लाख की प्लेस में है, तो 3 के बाद 3 इंटू 10 lakh, ओके, सो इट विल बिकम लाइक दिस, फाइन। ये हो गई हमारी 3 की प्लेस वैल्यू। बट इफ वी टॉक अबाउट लाइक द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हम इससे FV लिख सकते हैं और प्लेस वैल्यू को PV लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसकी बोला, जैसे किसी भी डिजिट को, जैसे 7 हो गया, 7 कहाँ पे है, 1000 की प्लेस पे है, ठीक है। तो 7 की जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो 7,000 रहेगी, लेकिन उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 7। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो फेस वैल्यू होगी, जो डिजिट रहेगा वही सेम डिजिट ही रहेगी उसकी फेस वैल्यू। जैसे अगर हम बात करें, एक मिनट, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर, दिस नंबर लाइक 2 इज 2, ओके। तो फेस वैल्यू वही सेम रहेगी, और प्लेस वैल्यू यानी कि उसकी प्लेस, ठीक है, प्लेस कौन से प्लेस पे है वो आपको लिखना है, फाइन, इनटू करके, ओके। और हाँ, ये नोट याद रखना हमेशा, द आई थिंक आपको दिख रहा होगा, द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, ओके। 0 की जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा 0 ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। Okay, now greatest and the smallest number. Okay, so to write the greatest number using the given digit, write the digits in descending order, keeping the same digits together. Okay, like if we take an example like 4 2 3, कोई भी हमने डिजिट्स ले ली, एक सिंगल डिजिट्स लेना है, ठीक है, कोई मिक्स नंबर नहीं बनाना है, एक सिंगल डिजिट लेना है। उसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, बड़े से छोटा, तो किस तरीके से रखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, 8, ठीक है, फिर उससे छोटा 7, देन 4 3 1, ओके। सो इट विल बिकम द ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर हम बात करें कि इसको हमें स्मॉलेस्ट नंबर में करना है, तो ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है,
इन डिजिट्स को, इन पर्टिकुलर एक एक डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है, ओके। और लेकिन अगर हम इसी की बात करें, इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। जैसे 1 3 देन 4 7 देन 8, सो इट विल बिकम द स्मॉलेस्ट नंबर। और ये किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। फाइन। सो ये ध्यान रखना कि जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए तो किसी भी ये पर्टिकुलर डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, बड़े से छोटा, और जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाए तो उसको छोटे से बड़े में जमाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। Okay, so this chapter is completed. The exercise we'll do in the next video, okay. Thank you.